President Trump. ایران خبردار رہے، صدر ٹرمپ نے تمام آپشنز میز پر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب مائک والز نے خبردار کر دیا، ایران کو مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ اور دہشت گردی اسپانسر کرنے والا ملک قرار دیا۔ کہا ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزاوار قرار دیا جائے گا۔ ایران پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا۔ کہا بہت ہو گیا، ایرانی حکومت کے مظالم ختم کرنا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران میں قتل عام رکنا چاہیے اور ایرانی رجیم کو اس بات کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ کشیدگی چاہتے ہیں نہ تصادم، جارحیت کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایراوانی کا خطاب۔ کہا امریکہ کا ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران نے 8 اور 10 جنوری کو داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو رجیم کہتے، ان ممالک پر دوہرا معیار اپنانے کا دعویٰ۔ کہا ایرانی سول سوسائٹی نمائندوں کے نام پر سلامتی کونسل میں امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ بولے ایرانی معاملے کو سفارتی سطح سے حل کرنا چاہتے ہیں، مگر براہ راست یا بالواسطہ جارحیت کی جاتی ہے تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ طاقت کا استعمال صورتحال مزید سنگین کر دے گا، سفارتکاری اپنائی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہا بڑھتی ہوئی کشیدگی میں علاقائی امن و استحکام کے لیے نئے خطرات جنم لے رہے ہیں، فریقین ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں، تصادم اور تنازع سے ہر صورت اجتناب کیا جائے۔ کہا ایرانی عوام اور قیادت کی بصیرت پر مکمل اعتماد ہے، ایران میں حالات کی جلد معمول پر واپسی کی امید کا اظہار۔ کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ خوش نہیں، روسی مندوب کی امریکہ پر تنقید۔ کہا یہ اجلاس بلانا شرمناک ہے، اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے۔ ویسلے نیبنزیا نے کہا کہ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ حالات کو بڑھاوا دے رہی ہیں، شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں، یہ بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے، امریکی کارروائی سے خطہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا، مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش۔ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے، چینی مندوب کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ چین کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چین چاہتا ہے مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہو۔ ایران خود مختار ملک ہے، ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مدد کرنی چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر گفتگو، یقین ظاہر کیا ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے، مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی اخبار کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ حملہ مؤخر کرنے کا کہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کا عمانی اور قطری ہم منصب سے بھی رابطہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور قطر سمیت عرب ممالک نے بھی کشیدگی سے گریز پر زور دیا۔ سوئس وزارت خارجہ کے عہدیدار کی ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سہ فریقی دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ نیا معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے الگ ہوگا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ معاہدے کی تکمیل کے لیے تینوں ممالک کے درمیان حتمی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ تینوں ملک اب معاہدے کے ڈرافٹ پر غور کر رہے ہیں۔
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि महमूद खान अटकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा, महमूद खान अटकज़ई का नोटिफिकेशन नेक शगून है, मगर कायमा कमेटीज़ में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। राना सना ने कहा, अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। कराची में सब्जी मंडी के सामने दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सब्जी मंडी के गेट पर कचरे और दीगर सामान को आग लगा दी। एहतजाज दुकानों पर कस्टम्स के छापे के खिलाफ किया गया। मुजाहिरे के बायस M9 मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। सियालकोट मोटरवे M11 और ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफ़र का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे से बारिश बर्फबारी होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FDR और सुई नदरन समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म से आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले आज़रबाईजान के वफ़द ने मुलाकात भी की। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। कहा, 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी गई। सार्फिन रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 4 रुपये 65 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी गई। डीजल पर फी लीटर लेवी में 80 पैसे इजाफा। डीजल पर फी लीटर लेवी 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि ये इक़्तिदार में आए। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। याद रखें, 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बानी PTI के दौर में भारत ने हमला किया। हमने रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़ के वापस किया। पार्लियामेंट को ये बताया गया कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। जबकि मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। ये बाहर बैठे नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज़ की तरक्की और अमन के दुश्मन है। ये पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम, महफूज मुस्तक़बिल से दूर रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुट्टी के हमरा कोयटा में फितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। फातिहा खानी शहीद की वालिदा ने कहा, उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं। कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान।
गुजरात में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान का सह जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 13 भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बनू में कार्रवाई करके 8 और कुरम में 5 खवारिज को हलाक किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से रिलीज़ कर दिया। नज़मुल इस्लाम ने गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन क्रिकेटर्स ने आज तक कोई अवार्ड या टाइटल नहीं जीता। भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए ना जाने का नुकसान खिलाड़ियों को होगा, बांग्लादेशी बोर्ड को नहीं। बोर्ड की जानिब से प्लेयर्स के नुकसान का माली अजाला नहीं किया जाएगा। नज़मुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर्स ने उन्हें बोर्ड से निकालने का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तानी पस मंज़र के हामिल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर। दोनों क्रिकेटर्स रवां हफ्ते के आखिर में स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में तय है। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी जदोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा दुआ है PTI कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। PTI को बतौर पार्टी एक लाइन लेना होगी। सूबे के वज़ीर आला को नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ये दोबारा फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे को पासेस दे रहे हैं। बोले वज़ीर आला की पहली ब्रीफिंग ही सिक्योरिटी सूरत हाल पर होती है। अली अमीन जब वज़ीर आला थे कहते थे बातचीत करनी चाहिए, अब कहते हैं अफ़गानिस्तान मुलव्वस है। एक कह रहा है दहशतगर्द हैं, दूसरा कहता है नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की वजह से बढ़ रही है, जिसका खात्मा इल्म से ही मुमकिन है। ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो मनफी सोच का खात्मा करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का रास्ता है यही है कि मकासद के हुसूल तक सोचते रहें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। पाकिस्तान और अमरीका की मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 8 जनवरी से जारी मश्क का आज आखिरी रोज़। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मेहमानों के लिए तकरीब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और सीनियर अमरीकी फ़ौजी शख्सियात की शिरकत। दोनों ममालिक के अफवाज के शुरका ने आला सतह की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दहशतगर्दी से निमटने की मशकों और तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बनाना है। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका दोनों के साथ तजारती रवाबित जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर मुजवज़ा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस लिया है। अमरीका से तजारती मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तों के जायज़े के अमल पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। क्वेटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में टक्कर। एक शख्स जाँ बहक। बंदर में पेश आए हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी।
कराची के इलाके कुरंगी ज़िया कॉलोनी में घर के टैंक में सफाई के दौरान एक शख्स जहाँ बहक, 2 अफराद की हालत गैर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल का बच्चा जहाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 9 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने कश्मीर पर भारत को आईना दिखा दिया। जनरल असम्बली में पेश रिपोर्ट पर भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर करारा जवाब दिया। पाकिस्तान मिशन के वज़ीर आसिफ खान ने कहा, भारतीय मंदूब इस ऐवान में हक़ाइक़ के मनाफी बयानात देने से पहले जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी नक्शों और सलामती कौंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों का बग़ौर मुताला कर लें। फरसूदा बयानिया कानूनी हक़ाइक़ को धुंधला नहीं सकता। जम्मू कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है और ना ही कभी बैनुल अक़वामी कानून के तहत ऐसा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की हतमी मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के अवाम की आज़ादाना और मुनसिफ़ाना राय के मुताबिक किया जाएगा। यही मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी नक्शों में भी मुनाक़स है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फ़ैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बाइस अमल में आई। बरतानवी रोज़नामे द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फ़ौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहिरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फ़िलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल अमन इनाम पेश कर दिया। मरिया कोरेना ने ट्रंप को अमन नोबेल इनाम व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर दिया। ईरान के साबिक़ बादशाह के जिला वतन बेटे रज़ा पहलवी ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पहला फ़ैसला इसराइल को तस्लीम करना होगा। नई क़यादत ख़ित्ते में ताल्लुक़ात के नए बाब का आगाज़ करेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। गाज़ा इंतज़ामिया के लिए फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम का भी ऐलान। सालिस ममालिक का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का खैर मकदम। नेशनल कमेटी बराए इंतज़ाम गाज़ा 14 जनवरी 2026 को कायम। आरज़ी अबूरी इंतज़ामी इदारा होगा। नेशनल कमेटी गाज़ा के अवाम के रोज़मर्रा उमूर चलाने की ज़िम्मेदार होगी। सालिस ममालिक का मगरबी किनारे और गाज़ा के दरमियान इदारा जाती और इलाक़ाई राबता बरकरार रखने पर जोर। गाज़ा की वहदत बरकरार रखने और किसी भी तक़सीम की कोशिश मुस्तरद करने का ऐलान। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन ममालिक के फ़ौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ अमरीका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर इक़दाम। अमरीका और ताइवान के दरमियान टैरिफ कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुआहदा। ताइवानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ कम करके 15% कर दिया गया। ताइवानी कंपनीज अमरीका की टैक्स सनत में कम अज़ कम $250 अरब की सरमायाकारी करेंगी। ताइवान इजाफी सरमायाकारी के लिए $250 अरब की क्रेडिट गारंटी भी देगा। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। आज होने वाले मैचेस में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होने से पहले ही नया रिकॉर्ड बन गया। रवां साल होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए फीफा को मुख्तलिफ मैचेस के टिकट्स के रिकॉर्ड 50 करोड़ से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। सबसे ज़्यादा डिमांड 17 जून को मियामी में होने वाले कोलंबिया और पुर्तगाल के मैच की है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में वर्ल्ड कप फुटबॉल 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त ने नाजरीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली।
पाकीज़ा जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हिरासानी का शिकार हुई, मगर उसके अपने ही घर वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली। ज़बरदस्ती शादी की सूरत में क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के खिलाफ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या हमारे माशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहेगा? और म्यूजिक वर्ल्ड टूर्स की दौड़ में बड़ा अपसेट। ब्रूनो मार्स के वर्ल्ड टूर्स ने शुमारी अमेरिका की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा टिकट फरोख्त करने का रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूनो मार्स का वर्ल्ड टूर अप्रैल से शुरू होगा।